عمران خان کے سر پر نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف لارجر بینچ کا فیصلہ جاری۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کو جاری کیا گیا شو کوز نوٹس برقرار رہے گا۔ نواز شریف نے واپسی کی تیاری شروع کر دی، چند ہفتوں میں پاکستان میں ہوں گے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں عمران خان بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار تک پہنچے، پہلے تعریف اقتدار سے باہر آنے پر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے رہے، ہمیں کسی کی بیساکھیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاہد حقان عباسی ہمارے سینئر، میرے بڑے بھائی ہیں، خود چل کر ملوں گی۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کا کوئی مستقبل نہیں۔ 3 سے 4 ماہ گزارنے مریم نواز سرجری کی بجائے کسی ماہر نفسیات سے بھی علاج کرا لیتی۔ فواد چودھری کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل، کہا پاکستان کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، موجودہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں۔ پاکستان کی مدد سے افغانستان سے غیر ملکیوں کو نکالا گیا، افغانستان والے پاکستان میں صرف عمران خان کی عزت کرتے ہیں۔ عمران خان ہر بار دوسروں پر ذمہ داری ڈال کر بری الزمہ نہیں ہو سکتے۔ مرکزی رہنما پیپلز پارٹی شری رحمہ کہتی ہیں اب ان کو قوم کے سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے۔ اسامہ بن لادن کو شہید کس نے کہا؟ دہشت گردوں سے مذاکرات کس نے کیے؟ سزا یافتہ دہشت گردوں کو صدارتی معافی کس نے دلوائی؟ کیا جنگجوؤں کو ملک میں آباد کرنے کا فیصلہ عمران خان کا ذاتی تھا؟ خان جواب دے۔ ملک میں استحکام صرف انتخابات سے آئے گا۔ معیشت کا بحران سیاسی بحران کے ساتھ چل رہا ہے۔ استحکام لوگوں کو غدار پکڑ دکڑ الیکشن میں تاخیر سے نہیں آئے گا۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر حکومت پر بس پڑے، کہا ملک میں اس وقت مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے، مہنگائی کی شرح 45% تک جا پہنچی، روپے کی قدر 80 سے 90 روپے کم ہوئی، ابھی مزید مہنگائی ہوئی۔ مسلم لیگ نون توڑنے میں جو کسر رہ گئی تھی وہ مریم نواز پورا کر دیں گی۔ مریم نواز کو مشورہ ہے، مزید کوئی سرجری کرانی ہے تو کرا لے۔ شہباز گل کی پھر سیاسی سرگرمیوں میں انٹری، کہا فواد چودھری سمیت ہم سب نے اپنے زخم بھول کر اب آگے چلنا ہے، ہمیں عوام کو الیکشن کا موقع دینا ہوگا۔ مفتاح اسماعیل کی پارٹی چھوڑنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند ہیں، اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جائے انصاری کی پریس کانفرنس، کہا شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے قریب ہیں، میرے بچوں کو احتجاج پر اکسانا تکلیف دہ ہے، گمراہ کرنا اور سڑکوں پر لانا کسی صورت برداشت نہیں۔ شیخ رشید کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے رات گئے شیخ رشید کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے میڈیکل چیک اپ کے بعد تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کیا۔ ان کے خلاف تھانہ اپارہ اسلام آباد میں مقدمہ درج۔ مقدمہ پیپلز پارٹی راولپنڈی کے نائب صدر راجہ عنایت کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ میرے ساتھ زیادتی کی گئی، انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ شیخ رشید کی اپنی گرفتاری کے بعد رد عمل، کہا اسلام آباد پولیس نے ظلم اور بدماشی کی ہے، 100-200 مسلح لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے، میرے ملازموں کو مارا اور میرے گھر کی تلاشی لی۔ ایس ایچ او نواز لیگ کا ٹاؤٹ ہے، نواز لیگ نے ہی اس کو یہاں تعینات کیا ہے۔ باس اور چپراسی کی قانون کا سامنا کرنے سے ہوا نکلی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی شیخ رشید کی گرفتاری پر رد عمل، قانونی کارروائی ہو رہی ہے، 15 کلو ہیروئن نہیں ڈالی، طیبہ گل کی طرح اغوا، انعام بشیر میمن کی طرح واش روم میں بند کیا۔ عمران نے سیاسی مخالفین سچ بولنے والے صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا، یہ ہر اس ادارے کو گالیاں دیتے ہیں جو ان سے جواب مانگے۔
इमरान खान की जानिब से शेख रशीद अहमद के गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हमारी तारीख में कभी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसी मुतसिबाना इंतजामी निगरान हुकूमत का इतलाफ नहीं हुआ। पाकिस्तान सड़कों पर चलने वाली तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को दिवाले कर दिया। और साबिक स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने मोहम्मद आमिर की मुमकिना वापसी पर सवाल उठा दिया। शुएब अख्तर ने कहा, पीसीबी की जानिब से मोहम्मद आमिर को वापसी का इंदिया दिया जाना दुरुस्त नहीं। माजी में हमने भी कौमी टीम से ड्रॉप होते देखा है। मैनेजमेंट 12 साल तक मुझसे नाराज रही, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हथियार डाल दिए जाएं। हमें ये सोचना चाहिए पाकिस्तान की जरूरत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर जुबानी मुख्तसर फैसला सुनाया। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच का फैसला जारी किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। याद रहे कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। वो आइंदा चंद हफ्तों में मुल्क में होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए बैसाखियों की जरूरत थी। 4 साल इक़्तिदार में रहते तो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते रहे, इक़्तिदार से बाहर आए तो इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मरियम नवाज का कहना था कि नून लीग हकाइक पर बात करेगी। हमारा बयानिया हकाइक पर मबनी है, हमें किसी बैसाखियों की कोई जरूरत नहीं। बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वतन वापस आएंगे। उन्होंने मजीद का कहा, आइए जानते हैं। नून लीग सिर्फ हकायक के ऊपर बेस करके बात करेगी। नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वजीर आजम के ऑफिस तक पहुंचना था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफों के ढेर लगा दिए। और फिर जब 4 साल हुकूमत रही और तो दिन रात हमें उन्हीं लोगों की तारीफें सुनने को मिलती थी। और जब इक़्तिदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से कोई जो मौक़िफ़ है वो हकाइक पर बेस्ड है। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो असूलों पर बेस्ड है। और हमारी किसी से कोई ना ज़ाती झगड़ा है, ना ज़ाती कोई अनाद है। इश्यूज़ पे बेस्ड बात होती है, वो अब भी होगी। मुस्लिम लीग नून जो हकाइक आज बता रही है या बताएगी, पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जो भी बात करनी पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन जो हमारा बयानिया है वो बिल्कुल हकाइक पर मबनी है, जिसको कौम ने पिछले 4-5 साल में अपनी आंखों से विटनेस किया। जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं सहाफ़ियों के साथ आज भी खड़ी हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आज भी खड़ी हूँ। मुझे जो कलम है उसकी ताकत का अंदाज़ा है और मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन कुछ सहाफ़ी जो सहाफ़ियों का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को
झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफत के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक है, उन हकायक को अवाम के सामने लाना हमारा हक है और उनको एक्सपोज करना हमारा हक है। बाकी सहाफ़ी बरादरी के साथ मैं दिलो जान से खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। आपके प्रिंसिपल्ड सहाफ़ी हैं जिनका काम सहाफत है, उनके साथ उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। देखिए, जो वाक़या हुआ है 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहुत कीमती जानें हमने इसमें गंवाई हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो बड़ा वैलिड सवाल है और आपने ये कहा कि जो मैंने कल भी अपनी स्पीच में ये कहा था कि KPK में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही है। 10 साल में आज भी जो काउंटर टेररिज्म का ऑफिस है वो एक जो किराए की बिल्डिंग है उसमें है। सबसे ज़्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी प्रॉपर जो है वो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं। 3 से 4 माह गुजार लें, मरियम नवाज सर्जरी की बजाय किसी माहिर नफ्सियात से भी इलाज करा लेती। पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है, मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। का जो मामला है हल नहीं कर सकते जब तक अफगानिस्तान की लीडरशिप आपकी पुश्त पे नहीं होगी, जब तक आपको एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपके उनके साथ एक रिलेशनशिप नहीं होंगे। क्योंकि सिंपल बात है, हमला लोग करते हैं उसके बाद वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। जब तक उनकी सपोर्ट आपको हासिल नहीं होगी, जब तक आप चीजें बेहतर नहीं करेंगे, खाली यहाँ पे इस तरह से ताकत के इस्तेमाल से मामला पेचीदा होंगे। ताकत का इस्तेमाल एक नुक्ता नजर या एक स्ट्रेटजी जरूर है, लेकिन ये मुकम्मल स्ट्रेटजी नहीं। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये मामला चलाया है, अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपने इसको तबाह किया है, उसके बाद अब हम बिल्कुल एक एक्सपोज हो चुके हैं और हमें फिलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या। शहबाज ख्वाजा आसफ जो हैं वो बयान दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते हैं कि टेररिज्म इमरान खान लेके आया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने सीरियस लोग हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको पता ही नहीं है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, इस वक्त सिचुएशन जो है वो जा किधर रही है। अगर इमरान खान टेररिज्म लेके आया है तो हमारे 3.5 साल में क्यों टेररिज्म नहीं था? हमने तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल करवा दी। हमने पाकिस्तान को पहली बार जो थे वो टूरिज्म डेस्टिनेशन पाकिस्तान जो था, अगर आपको याद हो 2021 में 2020 और 2021 में चल रहा था फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म। 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान वापस टूरिज्म से टेररिज्म के ऊपर चला गया। इस मुल्क की इन्होंने कमर तोड़ दी है। आज डॉलर दोबारा 271 रुपए के ऊपर चला गया है। हमाद अजहर साहब अभी जो है वो मईशत के ऊपर डिटेल बात भी करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान जख्मी है, एक तरफ पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी कमर टूट गई है। 30,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए महीना तक कमाने वाला जो शख्स है वो इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस गया। उसको समझ ही नहीं आ रही बच्चों की फीस कैसे देनी है, तेल की कीमतें जो हैं वो किधर चली गई हैं, और उसके बाद दहशतगर्दी वापस आ गई। अब जब इस कदर सूरत हाल आप पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर बाय माहौलियाती तब्दीली शीरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान हर बार दूसरों पर इल्जाम डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकते। अब इनको कौम के सवालों के जवाब देना होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में शीरी रहमान ने कहा कि इमरान खान अवाम को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दी और महंगाई के जिम्मेदार नहीं। कहते हैं वो जवाबदेह नहीं, इनसे पहले हुकूमत करने वाले जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शीरी रहमान ने मजीद कहा कि इमरान खान बताएं कि उसामा बिन लादेन को शहीद किसने कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किसने किए,
सजा याफ्ता दहशत गर्दों को सदारती मुआफी किसने दिलवाई? दहशत गर्दों को किस मकसद के लिए सदारती मुआफी और रिहाई दी गई? वफाकी वजीर ने कहा, क्या सजा याफ्ता दहशत गर्दों की रिहाई के हवाले से पार्लियामान को एतमाद में लिया गया? मुल्क में दहशत गर्दों का दफातर खोलने का ख्वाहिशमंद कौन था? 30 से 40 हजार जंगजुओं की पाकिस्तान में आबादकारी कौन करना चाहता था? क्या जंगजुओं को मुल्क में आबाद करने का फैसला इमरान खान का जाती था? उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से दहशत गर्दों को रियायत देने के बावजूद दहशत गर्दी के वाकयात में तशवीशनाक इजाफा क्यों हुआ? तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि मुल्क में इस्तेहकाम सिर्फ इंतखाबात से आएगा। मुर्शिद के बहरान सियासी बहरान के साथ साथ चल रहा है। इस्तेहकाम लोगों को गद्दार पकड़ दकड़ इलेक्शन में ताखीर से नहीं आएगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है, जिसके फाइनेंशियल इनफ्लोज पीडीएम की हुकूमत जो है वो उसका बंदोबस्त करती नजर नहीं आ रही। लिहाजा एक और नया आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो भी निगोशिएट करने की ज़रूरत है, और वो जाहिर है कि कोई मुंतखब हुकूमत करेगी जिसका रनवे जो है वो अगले 3 साल के लिए है। मैं आपको एक और बात ये बताना चाहता हूँ, और ये बहुत अहम बात है, कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की जो बढ़ने की रफ्तार है वो 45% है इस वक्त, जो लेटेस्ट डेटा है। अब आप देखें कि आटे की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, चिकन की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, सब्जियों की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, दालों की, घी की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है। और ये मज़ीद बढ़ने का भी अंदेशा है, क्योंकि जो आपका रुपया 80 से 90 रुपये सिर्फ ये इन 9 माह में डीवैल्यू हुआ है, और अभी हालिया चंद दिनों में 40 रुपये के करीब डीवैल्यूएशन आई है। इसका असर 2 माह के बाद आना है, जो कंसाइनमेंट्स आपकी 2 माह के बाद आ रही हैं। तो ये आपका जो इस वक्त पूरे मुल्क का जो अफरात ज़र है, जिसमें फूड आइटम्स के अलावा भी चीज़ें शामिल हैं, वो 27% है, वो बढ़ के और 35 से 40% तक चला जाएगा, जो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। और खुदा न खास्ता हम कहीं हाइपर इन्फ्लेशन के लूप में ना आ जाएं। हाइपर इन्फ्लेशन का जो लूप है वो माशी माहिरीन समझते हैं, और जो फाइनेंशियल लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो समझते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन का जो लूप है वो एक बड़ा ख़तरनाक लूप होता है। और अल्लाह करे वो आज तक पहले पाकिस्तान में नहीं आया, और अल्लाह करे कि वो हम दोबारा उस लूप के अंदर बाकी ममालिक की तरह ना आ जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। मईशत स्टेबिलिटी के बगैर नहीं चलती, और स्टेबिलिटी आम इंतखाबात के ज़रिए आएगी। स्टेबिलिटी पकड़ धकड़ के ज़रिए नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी लोगों को गद्दार कह के नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी आपकी इलेक्शंस को डिले करके नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात ही हैं, और हमें इसी की तरफ बढ़ना चाहिए और इसी की जाने बढ़ना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मईशत जो है, ये जाहिर है कि ये मार्केट्स के कहते हैं कि नोबडी कैन बीट द मार्केट, ये एक बड़ा फेमस मैक्सिम है फाइनेंस के अंदर कि द मार्केट नोबडी कैन बीट, तो ये इसको आप अब मार्केट को तो डंडे से नहीं सीधा कर सकते, ना मईशत को आप डंडे से चला सकते। और मईशत का इस वक्त जो बहरान है वो हमारे सियासी बहरान के साथ साथ चल रहा है। तो आइन और कानून की बालादस्ती और पुरअमन इंतखाबात, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार, यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए और मईशत की स्टेबिलिटी के लिए। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैंने आज से 3 माह पहले आप सब लोगों के सामने कहा था कि 3 माह के बाद सिर्फ एक टॉपिक ही डिस्कस हो रहा होगा, और वो मईशत है। और अब आप देखें, 3 माह पहले कोई मईशत डिस्कस नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन नजर आ रहा था कि ये बहरान आ रहा है। आज भी मैं ये बात रीइटरेट कर रहा हूँ कि हम अभी भी माशी तौर पे गैर संजीदा रास्ते पे हैं, और ये पकड़ धकड़ का मामला, ये अदम इस्तेहकाम का मामला, ये मामला ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, जिन्होंने सियासत के नशेबो फराज देखे हैं, वो ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ों से आज तक कोई हुकूमत जो है वो मुस्तहकम नहीं रह सकी। अगर पीडीएम का ख्याल है कि वो इन हरबों के जरिए मुस्तहकम रह जाएगी तो वो नहीं रह सकती। उनका बयानिया भी पिट गया है, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी परफॉर्मेंस लोगों के सामने आ गई है। तो इसलिए बेहतर है मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून तोड़ने में जो कसर रह गई थी वो मरियम नवाज पूरा कर देंगी। मरियम नवाज को मशवरा है, मजीद कोई सर्जरी करानी है तो करा ले। शहबाज गिल का कहना था कि पेशावर में दर्दनाक सानेहा हुआ, पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी समेत हम सब ने अपने जख्म भूलकर अब आगे चलना है।
हमें आवाम को इलेक्शन का मौका देना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दूध की नहरें नहीं बहाई थी। उन्होंने मजीद का कहा, आइए जानते हैं। तो नजर आएगा बड़ी वाज़ेह पॉलिसी, वाज़ेह शिफ्ट होती। इस चीज़ का मुजाहरा आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी मुख्तलिफ थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी मुख्तलिफ थी, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ थी। इमरान खान ये समझते हैं कि खित्ते में जिन लोगों ने परमानेंट एक दूसरे के साथ रहना है वो हमसाए अपने बदले नहीं जा सकते। इमरान खान ये समझते हैं कि अनलेस कि किसी का बिहेवियर हिंदुस्तान की तरह का हो जो एंगेजमेंट करना ही ना चाहता हो, अगर कहीं पे एंगेजमेंट की जगह मौजूद हो तो सबसे पहले वो करनी चाहिए, ताकि किसी भी साइड पे इतना खून ना बह सके। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि खून के लगे हुए दाग पानी तो धो सकता है, खून नहीं धो सकता। खून से आप जितने भी दाग धोने की कोशिश करेंगे उससे और दाग लगेंगे। तो इमरान खान हमेशा एंगेजमेंट की पॉलिसी पे बात करना चाहते थे, लेकिन उससे हुआ क्या, इमरान खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहने पे घर जाना पड़ा। अब जब हम दोबारा एक दफा दहशतगर्दी के इस अजदहे के का सामना करने के लिए एक दहाने पे खड़े हैं, तो क्या इस मुल्क की अवाम जो आईने पाकिस्तान कहता है इक्तदार आला सबसे पहले रब्बुल इज़्ज़त के पास, उसके बाद इस मुल्क की अवाम के पास है कि वो चुने कि मेरे मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, मेरे मुल्क ने अगर किसी से जंग लड़नी है तो वो कहाँ लड़नी है, क्यों लड़नी है। तो ये अवाम ने फैसला करना है कि उन्हें किस लीडर की बात, किस पार्टी की बात ज्यादा बेहतर लगती है। अगर आप नया इलेक्शन कॉल करेंगे, जो कि इस टाइम आइन के तहत जरूरत है, तो हर पार्टी अपना अपना मंशूर सामने रखेगी। हमारी टीम जो इक्तिसादी टीम है, हमाद साहब हैं, दूसरे लोग हैं, शौकत तरीन साहब हैं, वो लोग रखेंगे हम मईशत को ऐसे ठीक करेंगे। दूसरी तरफ से नून लीग अपनी बात रखेगी, पीपल्स पार्टी अपनी बात रखेगी। तो अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, वो इन सबसे समझदार है और वो ये तय करेगी कि उन्हें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना है जो इस टाइम पाकिस्तान को इस भंवर से निकाले। उसके बाद इसी तरीके से टेररिज्म की पॉलिसी इमरान खान की देख चुके हैं, इनकी भी देख चुके हैं। तो अवाम को मौका दें, वो किसकी पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं, वो किसकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा के लोग परेशान हैं तो उनको मौका दीजिए अपनी बात करने का। वो अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, हमारे नौजवानों के हौसले बुलंद हैं, अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे, दहशतगर्दों के नेटवर्क के करीब हैं, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना तकलीफ दे है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जान लेते हैं। एक के बजाय 10 टीमें हम लगाते हैं, जहां पे एक आदमी से काम चल सकते हैं, हम 10 लोगों को अदर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए हम लगा देते हैं, लेकिन फिर भी टाइम लगता है। आखिरी बात, और मैं माज़रत भी आपसे करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप करूं, क्योंकि आगे मैंने एक और मीटिंग में वज़ीर आला की मीटिंग एक है, इसी के हवाले से उसमें भी मैंने जाना है। तो मैं अपनी आखिरी बात करूंगा, अपनी बात ख़त्म करूंगा, उसके बाद फिर मैं 2-4 सवाल आपसे ले लूँगा। फिर मेहरबानी करें, क्योंकि मैं बड़ी खुल के बात कर दी आपसे और शायद सवाल आपके क्लियर वैसे ही हो गए होंगे। कौन था, कहाँ से आया, क्यों हुआ, सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ। मैंने बताया सिक्योरिटी लैब्स हुआ है, मेरे सिपाही जो खड़े थे, मेरे जवान खड़े थे, मेरे बच्चे खड़े थे, उन्होंने नहीं चेक किया, अपनी वर्दी देख के अपना भाई समझ के। एक मिनट, मैं आखिरी बात कर लूं, फिर उसके बाद आखिरी बात। 2 दिन से, खासतौर से कल ज्यादा, एक और इशू खड़ा हो गया। अभी हम एक बड़े इशू से फारिग नहीं हुए थे, हम जनाजों की तदफीन से फारिग नहीं हुए थे, और जनाजों की तदफीन से में हम अभी मसरूफ थे। हम फातिहा ख्वानी कर रहे थे, हम सोयम का और बाकी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन की टीमें अपनी काम कर रही थी, मलबे को हम क्लियर कर रहे थे, हमारे पास 500 काम थे। एक नया तूफान शुरू हो गया, मेरे बच्चों को लोग गुमराह करना शुरू हो गए।
کہ جی آپ کو تو تحفظ ملنا چاہیے، جی آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، جی سازشی سارے تانے بانے اس کے کہاں کہاں جوڑنا شروع ہو گئے. میرے بچوں کو گمراہ کیا. میرے لیے ایک نیا کام ڈھونڈا ہے آپ نے. آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ کر رہے ہیں یہ میرے لیے آپ نے نیا کام ڈھونڈا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی پریس کلب پشاور ڈھونڈنے جاتا ہوں، کبھی پریس کلب مردان پہ جاتا ہوں، کبھی میں سوابی میں ہوتا ہوں، کبھی میں نشہر میں ہوتا ہوں. میرے بچے جو لڑنے کے لیے ہیں، جن کو میں نے ٹرین کیا ہے، جن کو میں نے ویپن دیا ہے، جو بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، جو بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں، وہ اب اپنے اگر حقوق کا احتجاج اور تحفظ کی بات کرنا شروع کر دیں تو پھر میں کیا کہتے ہیں تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ میرے بچے اپنا قاتل، اپنے دشمن خود ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، ڈھونڈتے آئے ہیں، خود وہ کریں گے. تحفظ وہ کسی سے نہیں مانگیں گے، وہ اپنا تحفظ بھی کریں گے، وہ عوام کا تحفظ بھی کریں گے، وہ اس ملک کا تحفظ کریں گے، ملک کی سالمیت کا تحفظ کریں گے. ان کو تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور چند آپ کو بتائیں کہ پولیس نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا. انہیں عدالت میں پیش کیا گیا جہاں جج نے شیخ رشید کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. اسلام آباد پولیس نے رات گئے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو راولپنڈی بحریہ ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے میڈیکل چیک اپ کے بعد تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا. ان کے خلاف تھانہ اپارہ اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے. مقدمہ پیپلز پارٹی راولپنڈی کے نائب صدر راجہ عنایت کی مدعیت میں درج کیا گیا. شیخ رشید کے خلاف درج ایف آئی آر کے متن میں مدعی کی جانب سے کہا گیا کہ جو بھی عمران خان کو مروانا چاہتا ہے اس سلسلے میں تمام معلومات موجود ہیں اور وہ بتانے کے لیے تیار ہیں. شیخ رشید نے تمام بیان تیار کردہ سازش کے تحت دیا. وہ سابق صدر کو بدنام کرنا چاہتا ہے. ایسا کر کے شیخ رشید احمد آصف علی زرداری اور ان کے خاندان کے لیے مستقل خطرہ پیدا کرنا چاہتا ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. سربراہ عوامی مسلم لیگ نے اپنی گرفتاری کے بعد کہا کہ اسلام آباد پولیس نے ظلم اور بدمعاشی کی ہے. 100-200 مسلح لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے، میرے ملازمی کو مارا اور میرے گھر کی تلاشی لی. سابق وفاقی وزیر نے موقف اختیار کیا کہ یہ سب بدمعاش لوگ ہیں. یہ زبردستی سیڑھی لگا کر میرے گھر میں داخل ہوئے، مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا. آج جج صاحب نے میری ضمانت لی اور انہوں نے کہا کہ انسپیکٹر جنرل اسلام آباد 6 فروری کو پیش ہو. ایس ایچ او نواز لیگ کا ڈاؤٹ ہے، نواز لیگ نے ہی اس کو یہاں تعینات کیا ہے. اور دوسری طرف سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد پر درج ایف آئی آر سامنے آ گئی. مقدمے میں ایک قابل ضمانت اور 2 ناقابل ضمانت دفعات لگائی گئی ہیں. شیخ رشید پر عائد دفعہ 120 نفرت انگیز تقریب کے قابل ضمانت دفعہ ہے جس کی سزا 6 ماہ قید یا جرمانہ ہے. دفعہ 153A بغاوت پر اکسانے کے ناقابل ضمانت دفعہ ہے جس کی سزا 5 سال قید ہے، جبکہ دفعہ 505 عوام کو اشتعال دلانے کی ناقابل ضمانت دفعات ہے جس کی سزا 7 سال قید ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے شیخ رشید کی گرفتاری پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ باس اور چپڑاسی دونوں کی قانون کا سامنا کرنے سے ہوا نکلی ہوئی ہے. ٹویٹر پر جاری بیان میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ قانونی کارروائی ہو رہی ہے، 15 کلو ہیروئن نہیں ڈالی اور اس کے حکومت کا کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کہ سیاسی مسخرہ سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے. صرف قانون پر عمل ہوا ہے، پسلیاں تو نہیں توڑوائی. میڈیا کے سامنے پولیس والوں کو دھکے دینے والا مار پیٹ کرنے کا جھوٹ بول رہا ہے. رانا ثناء اللہ نے لکھا کہ قانون کے نیچے لاؤں گا کہ ڈائیلاگ بولنے والا قانون کے نیچے آنے سے کیوں ڈرتا ہے. قانون کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کرنا پولیس کا قانونی فرض ہے. طیبہ گل کی طرح اغوا کیا، نہ بشیر میمن کی طرح واش روم میں بند کیا. قتل اور دہشت گرد تنظیموں سے رابطے ہونے کا الزام سنگین الزام لگانے والے قانون کا سامنا کریں.
PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में चेयरमैन PTI का कहना था कि शेख रशीद की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारी तारीख में कभी भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से ऐसी मुतसबाना इंतकामी निगरान हुकूमत का इतलाक नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान सड़कों पर चलने वाली तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है जिसकी तरफ हमें ऐसे वक्त में धकेला जा रहा है जब हमें इम्पोर्टेड हुकूमत ने दिवालिया कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की गिरफ्तारी की मज़म्मत की है। अपने एक बयान में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शेख रशीद सुलझे हुए सियासतदान और जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन हैं। खबरें और भी हैं लेकिन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वज़ीर खजाना इसहाक डार ने नेशनल इस्लामिक इक्तिसादी फोरम से वीडियो लिंक में खिताब किया। इस्लामिक निज़ाम मुआशरत मेरे दिल के बहुत करीब है। फोरम सूदी निज़ाम के खात्मे के नेक अमल के लिए मुफीद साबित होगा। ख्वाहिश है जितना जल्द हो सके सूद का खात्मा करें। इस्लामी मालियाती निज़ाम के लिए अपने गुज़श्ता दौर में भी इक़दाम किए थे। वज़ीर खजाना ने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। इकनॉमिक फोरम के इनकाद पर जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान और इनके साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मुल्क भर से बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, रेगुलेटर्स, शरीया एडवाइजर्स, उलमा कराम और बिजनेस कम्युनिटी को इस फोरम पर जमा करके गौर व फिक्र का मौका दिया गया कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम मईशत का लाए अमल कैसा होगा, किस तरह होगा और इसके लिए क्या इक़दाम करने होंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि हम जितनी जल्दी हो सके अपने प्यारे मुल्क में सूद के निज़ाम का खात्मा करें। यकीनन ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, ऐसी डिस्कशंस, ऐसी जो काविशें हैं, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत को भी और सबको। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 का इफ्तिताह कर दिया। कराची आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की शराकत से तामीर होने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर अहसन इकबाल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर ने भी शिरकत की। बताएं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने तुर्बत में पाक बहरिया की तंजीमात का दौरा किया, जहां कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलरामी ने इनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने तुर्बत में जदीद तबी आलात से आरास्ता अस्पताल का इफ्तिताह किया है। अस्पताल के क़याम से तुर्बत के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। नेवल चीफ को तुर्बत में तैनात पाक बहरिया के यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग भी दी गई। नेवल चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात पाक बहरिया के अफसरान और जवानों की पूरी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाक बहरिया समुद्री सरहदों की हिफाजत के साथ साथ साहिली इलाकों के आवाम की बेहतरी के लिए पुरज़म है। अशरफ शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए 5 रुकनी स्पेशल JIT दुबई और कीनिया से शवाहिद इकट्ठे करके वापस पाकिस्तान पहुंच गए। JIT 12 जनवरी को दुबई पहुंची थी, जहां एक हफ्ता इंक्वायरी के बाद कीनिया रवाना हुई थी। दुबई में JIT मेंबरान ने अरशद शरीफ के आखिरी दिनों की मुलाकातों और राब्तों की मालूमात हासिल की। JIT रवा हफ्ते अपनी रिपोर्ट मरतब करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। DGI हेडक्वार्टर अवैस अहमद 5 रुकनी स्पेशल JIT की सरबराही कर रहे हैं।
दीगर अफसरान में IB से डिप्टी DG साजिद कयानी और ISI से ग्रेड 20 के मोहम्मद असलम भी शामिल हैं। FIA से डायरेक्टर साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद और MI से मोहम्मद अफजल भी 5 रुकनी JIT का हिस्सा हैं। 5 रुकनी टीम के अलावा मुकदमे का तफ्तीशी इंस्पेक्टर मोहम्मद शहबाज भी दुबई और कीनिया टीम के हमरा थे। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि मुअख्खर किए गए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को आइंदा आने वाले महीनों में वसूल करेंगे तो सर्कुलेट डेट कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वजीर तवानाई ने मज़ीद कहा कि IMF से भी यही बातचीत चल रही है। 300 से ज्यादा यूनिट वालों पर क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट लानी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहजाद अता इलाही को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर करने की मंजूरी दी। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिए गए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का स्टेटस और रैंक वफाकी वजीर के बराबर होगा। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर दोबारा कम होने लगी। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 17 पैसे इजाफा देखने में आया, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 272 रुपए पर ट्रेड कर रही है। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में डॉलर अब तक 79 रुपए 7 पैसे महंगा हुआ। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को सरकार की ज़िम्मेदारी हेड ऑफिस में मेहमान इजलास करेगा। वाइस कमिश्नर पंजाब सोशल महमूद, मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सनाउल्लाह, डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर मोहम्मद हसन, डायरेक्टर एडमिन नबील सिद्धू समेत दीगर की शिरकत की। प्रिंसिपल अफसरान ने कोसर खान को कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी तैनाती पर मुबारकबाद दी। वाइस कमिश्नर महकमाना पॉलिसी मंसूबा जात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी कोसर खान का कहना था कि अदारा जाती इस्लाहात के अमल को जारी रखेगा। तमाम अफसरान और स्टाफ मेहनत और ईमानदारी से अपने फराइज मनसबे अंजाम दे रहे हैं। वर्कर्स, उनके यहाँ अहले खाना और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल दुआ लाएंगे। दूसरी जानिब निगरान वजीर औकाफ बैरिस्टर अजफर अली नासिर का दरबार हजरत बीबी पाक दामन का दौरा। सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रजा बुखारी और दीगर अफसरान ने वजीर औकाफ को खुशामदीद कहा। वजीर औकाफ को दरबार पर होने वाले तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग भी दी गई। मजीद तफसीलात सलमान शाह की रिपोर्ट में। वजीर औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर ने आज दरबार हजरत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। इस मौका पर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, सेक्रेटरी औकाफ, मोहम्मद अकबर, डायरेक्टर औकाफ, डायरेक्टर प्रोजेक्ट औकाफ, डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर और महकमा के दीगर अफसरान ने इनका दरबार शरीफ पर इस्तकबाल किया। वजीर औकाफ ने दरबार शरीफ पर फातिहा ख्वानी की और मुल्क की सलामती और अमन-ओ-मान के लिए खुसूसी दुआ की। दरबार शरीफ पर हाजिरी के मौके पर उन्हें मज़ार पर जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शोबा मंसूबा जात के अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब ने मज़ार शरीफ की तौसीह के लिए इब्तदाई तौर पर 126.96 मिलियन मंजूर किए, जिसमें बारजा इजाफा करते हुए मज़कूरा रकम 193.305 मिलियन हो गई। पहले मरहला में 193.305 मिलियन की रकम खर्च हुई, जबकि दूसरे मरहला में रखे गए 313 मिलियन में से 268 मिलियन के फंड जारी हुए। बारजा वज़ीर औकाफ ने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बुजुर्ग हस्तियों के मज़ारात हम सब की अकीदत के मराकिज़ हैं। दरबार शरीफ और यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन की सिक्योरिटी हुकूमत की अवलीन तरजीह है, लिहाजा वो मजहबी मकामात की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के हवाले से मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ता में है। मंजर औकाफ को भी ज़ायरीन की पाक फजाइया के 8 अफसरान की एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की। हुकूमत पाकिस्तान ने पाक फजाइया के 8 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। तरक्की पाने वाले
अफसरान में एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर, एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ, एयर वाइस मार्शल शहरियार खान, एयर वाइस मार्शल नुमान वहीद शामिल है। तरक्की पाने वालों में मजीद एयर वाइस मार्शल महरियार साकिब नियाजी, एयर वाइस मार्शल अबूजर खान, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आसिफ असलम और एयर वाइस मार्शल गुलाम शबीर भी शामिल हैं। पेशावर बम धमाके के बाद आईजी रेलवे पुलिस राव सरदार अली खान की हिदायत पर एसएचओ इंस्पेक्टर मजर अब्बास ने लाहौर स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त कर दिए। हर आने वाले को बगैर चेकिंग के स्टेशन दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। इस बारे मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी की रिपोर्ट में। आईजी रेलवे राव सरदार अली खान की तरफ से पेशावर धमाके के बाद तमाम एसओपीज मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नजर मुल्क भर के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर गदागारों का दखला बंद करने और हिफाजती इकदामात सख्त करने की हिदायत कर दी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है और आने वाले मुसाफिर को मुकम्मल चेकिंग के बाद स्टेशन दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। इंस्पेक्टर मज़ाहिर अब्बास की खुसूसी हिदायत पर सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार समेत तमाम सिक्योरिटी एहलकार चौकों से बंद होकर ड्यूटी सरंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार और मुसाफिरों का कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहना था, जी रेलवे पुलिस ने सिक्योरिटी के हवाले से इसको अपलिफ्ट करने के लिए रेलवे के कमांडोज तैनात किए हैं और आने वाले पैसेंजर्स और रेलवे एसेट्स की जो निगरानी के लिए उनका सामान की चेकिंग हो रही है, मेटल डिटेक्टर से हो रही है। उसके बाद उनके आईडी कार्ड वगैरह जो है डिजिटलाइज किया गया है। पुलिस को ई पुलिस ऐप के ज़रिए उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। कोई कोर्ट एब्सकॉन्डर है या कोई दूसरे टारगेटेड ऑफेंडर हैं उनको चेक किया जाता है और उनके खिलाफ ज़ाब्ता के साथ कार्रवाई की जाती है। मज़ीद इस सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए जो खारदार तार लगाई गई है सामने, और इसके जो आने वाला और जाने वाले रास्ते हैं वो एक ही रास्ता दिया गया है, ज़्यादा रास्तों से मतलब एंट्रेंस नहीं दी गई पैसेंजर की सेफ्टी के लिए। सिक्योरिटी बड़ी बेस्ट हैगी है रेलवे स्टेशन खासकर लाहौर दी, क्योंकि इत्थे ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਟਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਾਸਤੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ, कोई किसी किस्म का डर खतरा खौफ नहीं है। मैं इस टाइम रेलवे स्टेशन में हूँ और माशाल्लाह इधर बहुत अच्छी चेकिंग हो रही है थ्रू, यानी सिक्योरिटी गेट्स भी पुलिस वाले भी बहुत ताउन कर रहे हैं और लेडी जोन सी हैं हमारे जो कांस्टेबल्स वगैरह जो भी हैं वो भी माशाल्लाह लेडीज़ को चेकिंग कर रही हैं और ये बहुत अच्छा इकदाम है इस चीज़ का और मज़ीद बेहतर भी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और कल को यानी जो है इससे हमारे फ्यूचर में भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है आजकल जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात में जो है हमारी पुलिस ही सबसे आगे होती है, तो इन लोगों की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। कमिश्नर लाहौर ने लारियडा, बादामी बाग, नवाज शरीफ अस्पताल, यकी गेट और जेर तमीर कमिश्नर ऑफिस द्यो समाज रोड का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं सवात खवाजा खेला पुलिस की कामयाब कार्रवाई हुई है। चोरी की वारदात में मुलव्विस 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट में। सवात ख्वाजा खेला पुलिस का नकबजन ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 नकबजन गिरफ्तार, माल मसरूका बरामद। SDPO ख्वाजा खेला मोहम्मद इजाज खान ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि इलाके में समाज दुश्मन अनासर के लिए कोई जगह नहीं है। ये 2 चोरी के वारदात नकबजनी के वारदात हो चुके थे। ख्वाजा खेला का एक गांव है कुसकर ख्वाजा खेला, उसमें 2 नकबजनी के वारदात हो चुके थे, तो इसका बाकायदा नोटिस RPO साहब मलाकन रीजन जनाब सजाद खान साहब, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर स्वात जनाब शहीदुल्लाह गंडापुर साहब ने इन दोनों वारदात का सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से हिदायत जारी किए कि इन दोनों वारदात में मुलजमान को ट्रेस करके जिद्दी भी चोर चकार इसमें मुलव्विस है उनको भी गिरफ्तार किया जाए और जिद्दी भी चोरी हुई है
उन तमाम माली मसरूफ़ों को रिकवर किया जाए। तो इन दोनों वारदात में हमने साइंसी बुनियादों पर और लोकल सोर्स से काम लिया जाकर 4 मुल्ज़िमान ट्रेस किए, कुल 4 मुल्ज़िमान ट्रेस हुए। उन 4 मुल्ज़िमान में 2 मुल्ज़िमान 2 चोर चकार नकब्ज़न हमने गिरफ्तार किए जो यहाँ पर पीछे खड़े हैं। इन 2 वारदात में जिद्दी भी चोरी हुई थी उसमें हमने रिकवरी की है और जो वारदात विकासुद्दीन वल्द अजीज़ुर्रहमान सकना कुज़कले ख्वाजा खेला की घर से हुई थी उसमें हमने तकरीबन 7 तोले तिलाई जेवरात आर्टिफिशियल्स और इसी तरह 20,000 रुपये नकद ये रिकवर किए। जो दूसरा वारदात थी उसमें हमने 3,25,000 रुपये पाकिस्तानी और एक हार है 2 बाली हैं वो भी रिकवर किए हैं और ये बिल्कुल असली हालत में है। और ये चोरी जो है ना ये बहार अली वली सुल्तान रूम सकना कुज़कले ख्वाजा खेला की घर से हुई थी। इन दोनों वारदात में हमने शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम की कामयाबी पर PHA के मालियों के एहसास में PHA हेडक्वार्टर जिलानी पार्क में तकसीम इनामात तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौका पर DG PHA ज़िशान जावेद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA मोहम्मद फारूक अकमल, डायरेक्टर एडमिन मूसा अली बुखारी, डायरेक्टर हेडक्वार्टर तर्जुमान PHA लाहौर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर और DG PHA ने शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मालिकों में एजाजी सर्टिफिकेट तकसीम किए और इस मौका पर PHA हेडक्वार्टर के नए बनने वाले मेन गेट का भी इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौका पर कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने मेन गेट की खूबसूरत तामीर को सराहा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए शोहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सानहे के मुतासरीन सिक्योरिटी के लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां दांव पर लगाई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि शहरियों पर हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उनका मज़ीद कहना था कि हम दहशत गर्दी से निपटने की कोशिशों पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान विदन पटेल ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ बाकायदा तौर पर राब्ते में है। अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर बातचीत के लिए खुसूसी एलची इस्लामाबाद गए थे। आपको बताएं कि साबिक स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने मोहम्मद आमिर की मुमकिना वापसी पर सवाल उठा दिया। एक इंटरव्यू में शुएब अख्तर ने कहा कि PCB की जानिब से मोहम्मद आमिर को वापसी का इंदिया दिया जाना दुरुस्त नहीं। माजी में हम भी कौमी टीम से ड्रॉप होते रहे। मैनेजमेंट 12 साल तक मुझसे नाराज रही, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हथियार डाल दिया जाए। हमें यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की जरूरत क्या है। मोहम्मद आमिर इंटरव्यूज में कहते रहे कि उन्होंने क्रिकेट में जान लगाई। दूसरी जानिब हकीकत यह है कि उनको माजी में सजा हुई, गलत किया था तो सजा और ठहरे। आपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं किया। मुल्क ने आपको जो कुछ दिया उसको वापस लौटाना चाहिए था। शुएब अख्तर ने कहा कि 2017 तक मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी मुनासिब रही। चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार बॉलिंग की। इसके बाद अगले 15 से 20 वनडे मैचेस में शायद ही कोई मयारी परफॉर्मेंस देखने में आई हो। याद रहे कि मोहम्मद आमिर ने PCB की साबिका मैनेजमेंट पर दास्ताना नजरअंदाज करने और जहनी अजियत पहुंचाने का इल्जाम आयद करते हुए 2020 में ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।